Hello everyone, myself Prabhat Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss the topic all pair shortest path, that is Flood-Warshall algorithm, from the subject Design and Analysis of Algorithm. Before this lecture I have discussed about a single source shortest path. Now moving ahead, what is the basic difference between a single source shortest path and all pair shortest path? In single source shortest path, we have to select a minimum distance from one vertex to other vertex. Assuming that there is a vertex u and v and there is various paths from u to v, we have to select a minimum value, minimum weight path. Agreed? अगर बात करें सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की, तो अगर हमारे पास 5 वर्टिसेस हैं या 6 वर्टिसेस हैं, तो एक सोर्स वर्टेक्स से सारी वर्टेक्स तक के शॉर्टेस्ट पाथ को इज कॉल्ड एज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ. एंड नाउ व्हाट इज ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ? अगर 5 वर्टिसेस एक ग्राफ में है तो सारी वर्टेक्स से सारी वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज फ्रॉम एवरी वर्टेक्स u टू एवरी वर्टेक्स v, we have to compute the shortest path is called as all pair shortest path. Agreed? So starting with the basic definition of all pair shortest path, this means finding a shortest path from every vertex of u to every vertex of v is called as all pair shortest path. मतलब सारी vertex of u से सारी vertex of v तक का shortest path is called as all pair shortest path problem. Now under this we will discuss about a Flood-Warshall algorithm which follows this all pair shortest path problem, right? So Flood-Warshall algorithm is a dynamic programming approach which is used to solve all pair shortest path problem on a directed graph. So Flood-Warshall algorithm क्या है? एक dynamic programming approach है that is used to solve a all pair shortest path problem on a directed graph. Agreed? The running time complexity of Fload-Warshall is order of v cube, या हम n क्यूब बात करें. एग्रीड? तो सिंपल अगर बात करें, हर वर्टेक्स u से हर वर्टेक्स v तक का शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड एज ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम. और Fload-Warshall algorithm is an algorithm which follows a dynamic programming approach to solve a problem, which follows a dynamic programming approach to solve all pair shortest path problem. Agreed? The running time complexity is order of v cube. Now in this there are negative weight edges may be present. अब ध्यान रखना है, in Dijkstra there were positive weights, in Bellman-Ford there can be negative weights, but we have to ensure that there should not be any negative weight cycle. So negative weights are present, but there should not be negative weight cycle in that, because if there is a negative weight cycle, this keeps on reducing each and every time from one vertex to another vertex. So we follow the dynamic programming process embedded with 4 steps to develop the algorithm. That is, characterizing the structure of optimal solution, recursively define the value of an optimal solution, compute the optimal solution, and then construct the optimal solution. This is a 4-step dynamic programming approach. So the basic takeaway from this slide is that what is all pair shortest path problem? So that is, from every vertex u to every vertex v, if we are computing a shortest path, is called as all pair shortest path problem. Now dynamic programming approach हम follow करते हैं in a Fload-Warshall to compute a all pair shortest path from vertex u to vertex v. The running time complexity is order of v cube. Negative weights होंगे, negative cycle इसमें नहीं form हो रही होगी. तो अब वन बाय वन हम इसके स्टेप्स को प्रोसेस करते हैं. सबसे पहला, कैरेक्टराइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ. सबसे पहले शॉर्टेस्ट पाथ के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं. अब स्ट्रक्चर सिंपल देखें, अगर एक i वर्टेक्स से j वर्टेक्स तक जाने का कोई पाथ है विद वेट 5, अब i से k आके k से j जाने का, i से k is 3, this is 1, this is 4. So from where we have to prefer? We have to prefer going from this to this. So this is the process of this, characterizing the structure of the shortest path. We will define a recursive formulation from this. So let's check how the possibilities can be covered from this. So Fload-Warshall algorithm considers the intermediate vertex
of a shortest path where an intermediate vertex of a simple path P is V1, V2, V3 up to VL and is any vertex of P other than V1 and VL, that is any vertex from this. So, what this statement is saying, from vertex V1 we are going to vertex Vn, right? There is a path from vertex V1 to Vn, but there can also be another path with the help of intermediate vertex which may have low cost. Agreed? Let's suppose from V1 to Vn we have a cost as 5, and let's suppose if we go from V1 to V2, that is that V2 is an intermediate vertex, then V2 to V3, then V3 to V4 and then Vn, and then having a weight less than 5. So, what we prefer to visit is V1, V2, V3, V4 and Vn, that is having a weight comparative to V1 to Vn, comparative is lesser, right. So, this is the approach. The Floyd-Warshall algorithm exploits a relationship between a path P and the shortest path from I to J with all the intermediate vertices. The relationship depends on whether or not K is an intermediate vertex or path P. अब सिंपल क्या है कि हम ये मान के चलेंगे कि अगर मेरे पास 5 वर्टेक्स हैं तो कभी ये भी हो सकता है कि यहां से यहां तक जाने के बीच में कोई इंटरमीडिएट वर्टेक्स नहीं है, और कभी ये भी हो सकता है यहां से जाने के बीच में एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इन दो सिनेरियो पे काम करेंगे। इफ K इज नॉट एन इंटरमीडिएट वर्टेक्स देन ऑल द इंटरमीडिएट वर्टिसेस ऑफ द पाथ आर इन द सेट दिस, thus the shortest path from vertex I to J with all the intermediate vertices in the set is shortest path from I to J with all the intermediate vertices in this। यहां पे बात ये हो रही है अगर K इंटरमीडिएट वर्टेक्स नहीं है तो सिंपल हम क्या बात कर रहे होंगे, जो पुराना डेटा हमारे पास होगा यहां से यहां तक का वेट ये है तो उस वेट को हम एज इट इज कैरी कर रहे होंगे। लेकिन अगर K एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स है जिसके आने से पिछला वाला वेट ज्यादा हो जा रहा है, देन वी विल कंसीडर दैट, so that we will see in the next slide, that is how this will work. Let K is an intermediate vertex of path P which denotes as I to K and K to J with P1 and P2, right. So, how this is working is, if we simply see this, this is I to J direct path, this is the direct edge, or I to K is an intermediate, K is an intermediate here and K to J. तो नाउ व्हाट वी विल डू, अगर I टू J मेरा इन्फिनिटी है या 5 है और ये मेरा 2 है और ये मेरा 2 है, तो मैं किस पाथ से जाना चाहूंगा कि मैं जाऊंगा I से K और K से J, बिकॉज दिस इज 2 + 2 is 4 विच इज लेसर देन 5, राइट। सो दिस K इज एन इंटरमीडिएट वर्टेक्स। अब यहां पे ये देखते हैं कि जब K इंटरमीडिएट वर्टेक्स है तो हम कर क्या रहे होंगे, हम मिनिमम चेक कर रहे होंगे किसका, हम मिनिमम चेक कर रहे होंगे इस वाले पाथ पे पुराना मिनिमम क्या रहा, मान लो Dij K-1, मतलब जब K इंटरमीडिएट वर्टेक्स नहीं है, या फिर यहां से यहां गए तो दैट इज Dik, यहां से यहां गए दैट इज Dkj, और दोनों का K-1। अब ये एक फॉर्मूला डेड्यूस हो जाता है इस चीज से कि I से J तक की पुरानी वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं Ik और Kj की पुरानी वैल्यू के सम से। I से J तक की पुरानी वैल्यू और I से K और K से J तक की पुरानी वैल्यू के सम में हम कंपैरिजन करेंगे, जो मिनिमम आएगा उसे हम अपडेट करते चलेंगे। अब यही रिकर्सिव फॉर्मुलेशन हमारा यहां पे ड्राइव होता है। हम सिंपल क्या बात कर रहे हैं, Dij K। अब देखो ये D क्या, D इज डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स I टू J विद द हेल्प ऑफ K इंटरमीडिएट वर्टेक्स। क्या है, D इज द डिस्टेंस या वेट फ्रॉम वर्टेक्स I टू वर्टेक्स J विद द हेल्प ऑफ K इंटरमीडिएट वर्टेक्स। सो दिस इज द वेट ऑफ अ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वर्टेक्स I टू वर्टेक्स J विद K इंटरमीडिएट वर्टेक्स इन दिस। व्हेन K इक्वल टू 0, a path from vertex I to J with no intermediate vertex, मतलब K अगर 0 है इसका क्या मतलब है, कोई इंटरमीडिएट वर्टेक्स नहीं है। कोई इंटरमीडिएट वर्टेक्स नहीं है तो जो भी ग्राफ की डायरेक्टेड एजेस हैं कि इससे इस तक का वेट ये है, वो हम डायरेक्ट लिख रहे होंगे, राइट। तो क्या मतलब है, जब Dij K में K 0 होगा तो हम सिंपल लिखेंगे Wij। अब Wij का क्या मतलब है,
डब्ल्यू आई जे ये अगर आई से जे तक का वेट है तो वो वेट असाइन कर दिया, आई से जे तक की डायरेक्टेड एज नहीं है तो उसे इन्फिनिटी दे दिया। एग्रीड। तो सिंपली हम इस बेसिस पे चीजों को डिफाइन कर रहे होंगे। इसमें हम तीन तरह से कैटेगराइज कर लेंगे। अगर आई टू जे की एज है तो वेट दे दिया, आई टू जे की एज नहीं है तो इन्फिनिटी दे दिया, अदरवाइज हमने जीरो दे दिया डायगोनल वाले पार्ट को, राइट। और जब k की वैल्यू है 1 से लेके बढ़ के, तो 1 अगर है मतलब एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स है, k इक्वल टू 1 का मतलब यह है कि i और j के बीच में एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स है k इक्वल टू 2 का मतलब यह है कि i और j के बीच में दो इंटरमीडिएट वर्टेक्स हैं k और l। तो हमें इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका सीधा सा मतलब ये हो गया, अगर i से j के बीच में k एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स है तो मैं क्या करूंगा, मिनिमम देखूं किसका, i j का पुराना, दैट इज i j k माइनस 1, i k का पुराना दैट इज i k k माइनस 1, k j का पुराना दैट इज दिस, दोनों का सम, इसको मिनिमम से कंपेयर करा, दोनों का मिनिमम पिक करा और यहां पे रिटर्न कर दिया। ये रिकर्सिव फॉर्मुलेशन हमने जनरेट करा सेकेंड स्टेप के बाद। अगर मैं इसको ऐसे समझूं पहले और दूसरे स्टेप से कि भाई एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाना है, एक से दूसरे वर्टेक्स तक जाने का एक पाथ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, राइट। अब अगर पाथ है तो वो वेट दे दिया, अगर पाथ नहीं है तो इन्फिनिटी दे दिया। ये तब बात हुई जब k इक्वल टू 0 है, लेकिन अभी मेरे पास i से j तक का पाथ नहीं है, लेकिन i से k जाऊं और फिर k से j आऊं तो एक पाथ एग्जिस्ट करता है। तो k यहां पे बिहेव कर रहा है एज एन इंटरमीडिएट वर्टेक्स। तो व्हाट वी विल डू इज कि जब k की वैल्यू 1 होगी, मतलब एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स बीच में होगी, तो ij की पुरानी वैल्यू, ik की पुरानी वैल्यू प्लस kj की पुरानी वैल्यू में मिनिमम मैं पिक करूंगा, एंड दिस कीप्स ऑन अपडेटिंग एवरी टाइम। दिस इज अ डिवीजन ऑफ अ प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स एज पर द स्टेप नंबर 1 इन ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। नाउ दिस इज एन एल्गोरिथम, द सेम एल्गोरिथम, एन रोज ऑफ w, पहले मैंने रोज डिफाइन कर ली, डी नोट में वेट असाइन कर दिया, आइदर वी विल रिप्रेजेंट इज एट डी आई जे 0 और डी नोट, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। सो थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम एक ग्राफ के थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ वेट्स निकाल रहे हैं हम, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट पाथ वेट निकालें तो सबसे पहले मैंने डी नोट को डिफाइन कर लिया, डी नोट इज w, w मतलब जब k इक्वल टू 0 है, k इक्वल टू 0 मतलब जो भी ग्राफ है यहां से यहां तक का वेट है तो वेट दे दिया, अदरवाइज इन्फिनिटी दे दिया, सेल्फ लूप पे 0 दे दिया, राइट। अब k का एक लूप चलाया 1 से लेके n तक, फिर i का लूप चलाया उसी के अंदर 1 से लेके n तक, और j का लूप चलाया 1 से लेके n तक। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास एक 5x5 की अगर वर्टिसेस हैं और सारी वैल्यूज हमने यहां फिल कर रखी हैं, और किसी से किसी तक का शॉर्टेस्ट पाथ, हर किसी से हर किसी तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहा हूं, तो 5 × 5 × 5 दैट इज 125। तो मैंने एक ये चलाया इंटरमीडिएट वर्टेक्स के लिए, इसके अंदर चलाया i और j के डिपेंडेंट लूप्स, ठीक है, और यहां पे रिटर्न कर दिया वो फॉर्मूला डी आई जे के इक्वल टू मिनिमम डी आई जे के माइनस 1, डी आई के के माइनस 1, के जे के माइनस 1, रिटर्न डी एन, और कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n क्यूब, क्योंकि ये 3 डिपेंडेंट लूप्स यहां पे चल रहे थे। अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल्स में हम देख पा रहे हैं 5 वर्टिसेस हैं, इन 5 वर्टिसेस में हमारे पास डायरेक्टेड एजेस गिवन है और नेगेटिव वेट्स भी गिवन है, नेगेटिव साइकिल फॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने डी नॉट, D1, D2, D3, D4, D5 निकाल लिया। इसका क्या मतलब है, डी नॉट कोई इंटरमीडिएट वर्टेक्स नहीं है, D1 एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स, 2 इंटरमीडिएट वर्टेक्स, 5, 4 एंड 3। अब इसका एक शॉर्टकट यहां से समझते हैं। हमने डायगोनल को 0 रखा ग्राफ से देखते हुए, क्योंकि यहां पे तो हमने wij डिफाइन करा, बस डायगोनल को 0 करा ग्राफ से देखते हुए, किसी से किसी तक की, ध्यान देना, किसी से किसी तक की अगर डायरेक्टेड एज नहीं है तो इन्फिनिटी दे दिया, रेस्ट
वेट असाइन कर दिए। तो डी नॉट में क्या करा, WIJ दिया, क्या कंडीशन लगाई, अगर सेल्फ लूप है तो 0, किसी से किसी तक की डायरेक्टेड एज नहीं है तो इन्फिनिटी, किसी से किसी तक की डायरेक्टेड एज है तो वेट असाइन कर दिया। एग्रीड। अब D1 जब मैं कंप्यूट करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला वही है, DIJ k इक्वल टू मिनिमम ऑफ DIJ k माइनस 1 DIK k माइनस 1 प्लस KJ k माइनस 1। बट यहां पे एक ट्रिक मैं बता रहा हूं जिसको अगर फॉलो करेंगे तो ये बहुत जल्दी ये मैट्रिक्स बन सकती है। ठीक है, तो उसको फॉलो करके चलते हैं और वो उसी फॉर्मूले से डिड्यूस हुई है, तो वो देख लेते हैं कैसे। अब हमने यहां पे क्या करा, इसकी फर्स्ट रो, भाई हम बात क्या कर रहे हैं यहां पे, DIJ k माइनस 1 DIK k माइनस 1 प्लस DKJ k माइनस 1, यही है। एक पे देख लेते डी नॉट से D1, तो वो आगे रेप्लिकेट हो जाएगा। अब हमने क्या करा, हमने इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को यहां पे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। क्यों करा, पहले इसका लॉजिक समझते हैं। भाई D1 में हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 एक इंटरमीडिएट वर्टेक्स की तरह बिहेव कर रही है 1। तो अगर मेरे पास 5 वर्टेक्स है 1 2 3 4 5, उसमें 1 अगर इंटरमीडिएट वर्टेक्स की तरह बिहेव कर रही है, तो अगर मैं देखूं इन पोजीशन और इन पोजीशन पे, या तो 1 हमारा रो वाली वैल्यू होगी या 1 हमारी कॉलम वाली वैल्यू होगी। एग्रीड। तो अगर मैं यहां से बात करूं, मैंने कहा भाई डी नॉट की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एज इट इज कॉपी कर दो D1 में। पहली चीज, डी नॉट की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एज इट इज कॉपी कर दो D1 में, क्योंकि 1 जो है वो मेरी मेन वर्टेक्स की तरफ बिहेव कर रही है, सोर्स या डेस्टिनेशन की तरह, इंटरमीडिएट की तरह नहीं। पहले का रीजन। अब दूसरा यहां पे ट्रिक ये, अगर रो में कहीं भी इंफिनिटी है जैसे ये, तो इसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम को एज इट इज कॉपी कर दीजिए। ये कॉपी हो गई। अब इसका रीजन क्या है, अब सोचो, मान लो ये वैल्यू निकाल रहा था मैं, इस वैल्यू को निकालने के लिए मैं पुरानी वैल्यू ये देखता। एग्रीड। पुरानी वैल्यू 1 थी, ये DIJ k माइनस 1, ये जो है ये DIK k माइनस 1 है, ये DKJ k माइनस 1 है। तो भैया सीधी सी बात है कि 1 को अगर किसी इंफिनिटी से कंपेयर करूंगा तो आएगा तो 1 इना मिनिमम। यही यहां पे लॉजिक है कि अगर रो में कहीं भी इंफिनिटी है तो उसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम आप एज इट इज कॉपी कर दो, क्योंकि वो मिनिमम ही होगा हर बार। क्योंकि जब इंफिनिटी जाके किसी IK के साथ ऐड हुआ होगा तो वो एक लार्जेस्ट वैल्यू बन ही गई होगी, इसीलिए वो कॉलम एज इट इज कॉपी करती। सेम अगर रो में इंफिनिटी है कॉलम में, तो उसकी करस्पॉन्डिंग रो। एग्रीड। तो यहां तक आपको 3 कंडीशन समझ में आई क्या। सबसे पहले मैंने डी नॉट की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठा के D1 में डाल दी, क्योंकि 1 इज बिहेविंग एज अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन वर्टेक्स, नॉट एज अ इंटरमीडिएट वर्टेक्स। सेकेंड स्टेप, अगर रो में कहीं इंफिनिटी है उसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम कॉपी कर दो। अगर कॉलम में कहीं इंफिनिटी है तो उसकी करस्पॉन्डिंग रो को कॉपी कर दो। रीजन बीइंग कि अगर वो इंफिनिटी चाहे IK रहा हो या KJ रहा हो, अगर वो किसी में ऐड होगा तो हमेशा IJ ही छोटा हो रहा होगा या बराबर रह रहा होगा। दैट्स द ओनली रीजन। एग्रीड। 2 चीजें क्लियर। तीसरे पे आते हैं। अब ये वाली वैल्यू बची, इस वाले के लिए प्रीवियस वैल्यू देखें तो क्या है, इंफिनिटी, और इसका IK 2 है और KJ 3 है, तो 2 + 3 क्या हुआ, 5। तो 2 + 3 5 जो है वो इंफिनिटी से छोटा है, तो यहां 5 आ गया। नेक्स्ट देखें, -5, 2 + 8 10, तो ये -5 ही रहा। नेक्स्ट देखें, इंफिनिटी 2 और -4 -2। तो अगर मैं देखूं तो मेरा ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन 2 वैल्यूज में बस चेंज आया। अब मैं D2 में क्या कर रहा हूं, D1 की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
रो में कहीं इंफिनिटी है तो कॉलम कॉपी, कॉलम में कहीं इंफिनिटी तो रो कॉपी, बाकी बची हुई वैल्यूज पे वो फॉर्मूले से हमने कंप्यूट करा। सेम D3 में क्या कर रहा हूं, सेकंड रो सेकंड कॉलम, D4 में थर्ड रो थर्ड कॉलम, D5 में फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, D1 में क्या करा है, इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, D2 में ये कॉपी हो जाएगा एज इट इज, ये इसके करस्पॉन्डिंग काम करेंगे। D3 में ये पुराना एज इट इज आया होगा, D4 में और D5 में ये रहा होगा। एग्रीड। अब ये D2 आ गया, अब क्या करूंगा, रो में इंफिनिटी है तो कॉलम कॉपी, कॉलम में इंफिनिटी है तो रो कॉपी, उसके बाद की वैल्यू मैंने कंप्यूट कर ली। अब ध्यान मुझे ये देखते चलना पड़ेगा मेरा किस किस मैट्रिक्स में चेंज आया। जैसे मेरा चेंज सिर्फ यहां और यहां आया, ऐसे ही मैं अगली बार भी हाईलाइट कर लूंगा किस किस में चेंज आया, इसके कंपैरेटिव। फिर इसमें प्रीवियस के कंपैरेटिव कहां चेंज आया, ऐसे इसमें कहां चेंज आया, ऐसे इसमें कहां चेंज आया, ये हम ध्यान रखते चलेंगे। तो सिंपल हमें क्या ध्यान रखना है, यहां पे D0 हमने बनाई WIJ से, किसी से किसी तक का कुछ वेट है उठाया डाल दिया, नहीं है इन्फिनिटी, सेल्फ लूप है तो 0। D0 बनने के बाद जब मैं D1 बनाऊंगा तो D0 की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉपी करूंगा, क्योंकि उसमें वन सोर्स और डेस्टिनेशन वर्टेक्स की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। उसके बाद अगर रो में कहीं इंफिनिटी है तो कॉलम कॉपी करूंगा, कॉलम में कहीं इंफिनिटी है तो रो कॉपी करूंगा, और बाकी बची हुई वैल्यूज को कंप्यूट करूंगा यूजिंग द फॉर्मूला। और D1 में जहां जहां चेंज आया D0 के कंपैरेटिव उसको हाईलाइट कर लूंगा, जिससे मुझे यह पता चल जाएगा कि जब मैं पाई निकालूंगा फॉर चेकिंग कि क्या पाथ रहा होगा, क्योंकि I से J तक अभी पाथ इंफिनिटी है, लेकिन I से K जाके J आने का पाथ है, तो मुझे K रिटर्न करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो मिनिमम पाथ आया है। एग्रीड। वेट्स निकालने के बाद मुझे पाथ भी बताना है कि ये पाथ क्यों आ रहा है ऐसा। तो मैं D0 से D1 में जब जाऊंगा तो जो D1 का रिजल्टेंट आएगा उसमें कहां कहां चेंज है D0 से वो हाईलाइट करूंगा। सेम काम मैं D2 पे करूंगा, सेम D3 पे, सेम D4 पे, सेम D5 पे। तो मैं यहां से ये समझ पाता हूं कि अगर मैं 5 मैट्रिसेस पे काम कर रहा हूं तो 5 क्रॉस 5 इंटू 5 इज 125, और 125 कंप्यूटेशंस का मतलब ये होगा कि n क्यूब। अब ये तो हो गया मेरा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 है कंस्ट्रक्टिंग अ शॉर्टेस्ट पाथ। आपने वेट्स निकाल लिए, अब मिनिमम D0 से D1 में अपडेट हुए, D1 से D2 में अपडेट हुए, D2 से D3 में अपडेट हुए, D3 से D4 में, D4 से D5 में, आपके पास वेट्स आ गए मिनिमम। अब मुझे यह पता चलना भी जरूरी है कि ये वेट जो आ रहे हैं ये वाया किस पाथ आ रहे हैं। उस पाथ को कंप्यूट करने के लिए हम एक प्रेडिसेसर मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। उस प्रेडिसेसर मैट्रिक्स के थ्रू हम एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं कि जब इंटरमीडिएट वर्टेक्स नहीं होंगी तो कैसे, और इंटरमीडिएट वर्टेक्स होंगी तो कैसे। एग्रीड। तो उसको एक बार देख लेते हैं। देयर आर वेरियस डिफरेंट मेथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ फ्लोट वार्शल एल्गोरिथम। वन वे इज टू कंप्यूट द मैट्रिक्स डी निकालने के बाद देन वी कंप्यूट अ प्रेडिसेसर मैट्रिक्स पाई। अब ये पाई कैसे कंप्यूट कर रहे होते हैं? अगर मैं डायरेक्ट यहां पे देखूं तो वी कैन गिव अ रिकर्सिव फॉर्मुलेशन ऑफ पाई आई जे के। वही है प्रेडिसेसर मैट्रिक्स फ्रॉम वर्टेक्स आई टू वर्टेक्स जे विद द हेल्प ऑफ के व्हेन के इज 0। अगर इंटरमीडिएट वर्टेक्स नहीं है तो क्या? अब सिंपल सी बात है, यहां पे इसने क्या कहा कि अगर आई और जे बराबर हैं, आई और जे बराबर कब होंगे? जब सेल्फ लूप होगा, ठीक है। और जब वेट इंफिनिटी है और है, या तो सेल्फ लूप या फिर वेट इंफिनिटी है, तो मैं निल कर दूंगा। और अगर आई और जे बराबर नहीं है और वेट लेस देन इंफिनिटी है, मतलब डायरेक्टेड एज है, दैट इज आई। आई मतलब उसका रो नंबर। सीधी सी बात सोचो ना, आई से जे तक गए तो आई तो रिटर्न होगा। तो सिंपल क्या ध्यान रखना है मुझे कि जब k इक्वल टू 0 है, तो जब मैं पाई 0 निकाल रहा हूंगा तो जो D0 होगा उसमें क्या होगा? 0 होगा सेल्फ लूप की वजह से, इंफिनिटी होगा डायरेक्टेड एज ना होने की वजह से। तो 0 और इंफिनिटी पे निल, और जो डायरेक्टेड एज का वेट था उन पे आई। आई मतलब रो। अब जब k की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो सिंपल क्या,
दो कंडीशन हमारी पॉसिबल हैं, या तो पुरानी वैल्यू ले लें या फिर हम इंटरमीडिएट वर्टेक्स की हेल्प से ले लें। मतलब आई से जे गए तो पाई आई जे में, पाई आई जे के में या तो पाई आई जे के -1 ले लें, या के जे वाले पे गए तो पाई आई जे के में पाई के जे के -1 ले लें। राइट, तो दो चीज यहां पे निकल के आती हैं। अब ये भी कैसे, अगर डी आई जे के -1 तुम्हारा छोटा है, छोटा होना मतलब हर बार डी वाली वैल्यू पुरानी वाली वैल्यूज आ रही है, क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉपी, इन्फिनिटी करस्पॉन्डिंग ये कॉपी, इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉपी, तो हुआ क्या उसके केस में, उन सब केसेस में डी आई जे छोटा था। जब डी आई जे छोटा है तो पाई आई जे भी पुराना ही होगा, और जब डी आई जे बड़ा हो जाएगा तो मैं जे से पहले जो होगा उसे के वाले को रिटर्न करूंगा, पाई के जे, दिस इज दिस। अब इसको चेक कर लेते हैं कैसे। ये हमारा डी नॉट था, मैंने इसमें इन सबको 1 1 2 2 1 3 4 4 5 ये आपको समझ में आ गया, रो वैल्यू असाइन करिए। अब D1 में क्या करा, D1 में मेरा चेंज कहां था, यहां पे, एग्रीड, यहां पे और यहां पे। इन दो वैल्यूज पे आप देखोगे कि केजे वाला पार्ट आएगा, बाकी हर बार आईजे वाला पार्ट ही छोटा है, स्मॉल। जब आईजे छोटा होता है तो पाई आईजे के में पाई आईजे के -1 ही आएगा। और जब मैंने क्या कहा था आपसे, जब डी नॉट से D1 में जहां जहां चेंज हो उन्हें हाईलाइट कर लो। जहां चेंज है इसका मतलब ही ये है कि ये वाला पार्ट पाई आईजे के जो है वो पाई के जे के -1 होना है। तो मतलब ये क्या है, 5 है तो यहां पे मेरा 1 रिटर्न हो गया, ये भी 1 रिटर्न हो गया, क्योंकि आप वाया 1 की बात कर रहे हो। क्यों, क्योंकि ये वर्टेक्स कौन सी है, 4, 2, तो 4 से 2 तक पहले इंफिनिटी था, लेकिन 4 से 1 गया, 1 से 2 आया, तो मेरे पास वेट जो आ गया, 4 से 1 जाऊंगा तो कितना आएगा 2, 1 से 2 जाऊंगा तो मेरे पास 3 आ गया, तो इन्फिनिटी 2 + 3 5 आ गया, तो ये इसलिए अपडेट होके यहां पे 1 आया, ऐसे ही यहां पे 1 आया। वही काम हम आगे कर रहे होंगे। अब देखो, फिर D1 से D2 गए, D1 से D2 में जहां जहां चेंज रहा होगा वो आप हाईलाइट करेंगे, उसको हाईलाइट करने के बाद उसी हिसाब से आप पाई 2 को अपडेट कर रहे होंगे। तो हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना, जब डी नोट बनाया, डी नोट से D1 बनाया, D1 से D2, D2 से D3, D3 से D4, D4 से D5, तो जो डी नोट से D1 में जहां जहां चेंज आया उन्हें हाईलाइट कर लो, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू कंप्यूट पाई, क्योंकि जहां चेंज है वहीं पे केजे बड़ा है, रेस्ट तुम्हारा आईजे बड़ा चल रहा है, एग्रीड। इसी तरह से हमने D3 से पाई 3 निकाला, इसी तरह से हमने D4 से पाई 4 को कंप्यूट करा, इसी तरह से D5 को पाई 5 से कंपेयर करा, तो हम इसमें रिजल्टेंट ये रिटर्न कर सकते हैं कि ये वर्टेक्स से ये वर्टेक्स तक जाने में अगर शॉर्टेस्ट पाथ ये है तो वाया दिस इंटरमीडिएट वर्टेक्स है, एग्रीड। होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, सो थैंक यू एवरीवन।